ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। मैं ये बताता है कि मेरी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है लेकिन मुझे छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ जो आज एक बूढ़ी माँ और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनकी कहानी कुछ इस तरह है कि इनका 24 साला नौजवान बेटा अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए चाइना जाता है। अपने घर वालों को किस तरह वो राज़ी करता है और फिर अपने हालात को बदलने के लिए उसने चाइना का ही रुख क्यों किया। तो जब से इनका बेटा यहाँ से चाइना जाता है और उसके बाद उसका कोई राब्ता नहीं होता, इन्हें कुछ अरसा बाद एक लेटर मौसूल होता है और उसके बाद एक कॉल आती है कि जी आपका बच्चा, आपका बेटा इस वक्त चाइना की जेल में है। शबीर नामी नौजवान 2007 में अपने घर के हालात बदलने के लिए चाइना गया, जो कि आज तक वापस नहीं आया। उसकी राह तकते तकते उसके माँ बाप आज इस हद तक पहुँच गए हैं कि उन्हें मैं बता नहीं सकता कि ये जो मेरे साथ बुज़ुर्ग खड़े बैठे हैं, इनके पाँव का इस कदर बुरा हाल है। जब वो इनसे रब्ता हुआ कि मैं इस वक्त जेल में हूँ, लेकिन वो जेल किस वजह से गया, उसको क्यों जेल भेजा गया, उस बारे में अभी तक इन्हें कोई कुछ भी पता नहीं है। इनसे बात करते हैं कि किस लिए वो चाइना गया, यहाँ वो क्या काम करता था, वो घर वालों को बता कर गया था या कि अपनी मर्ज़ी से वो इनको बिना बताए चला गया था। अंकल जी मन तुसी दसो कि शबीर जदों गया सी की कह के गया सी। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਭਾਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਲਟਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਰਾਏਵਿੰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। किसी को काम करता सी। ਹਾਂ ਰਾਏਵਿੰਡ ठीक है। ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ अच्छा, ਟਿਕਟ ਦੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, 8-10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੀਏ ਨਾ ਹੀ ਜਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਦਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਆਦਤ ਉਹਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ 16 ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮਰ ਖਪ ਗਿਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ। 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣਾ।
ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਗਏ ਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। इनके शबीर के मामले में जो सारी पेशरफ्त जो भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलन बात करते हैं कि आखिरकार जिन अदारों के पास ये जाते हैं या जो एक तरीक़ाकार होता है, जो इस तरह जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों की जेलों में सड़ रहे हैं और मुफ्त की जो सज़ाएँ वो काट रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता है। हुकूमतें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी किसी हुकूमत को तरस नहीं आता। इनके आंखों से आप आंसू देख रहे हैं, यकीन करें कि मेरा दिल जो है वो इस वक्त इतना ज़्यादा वो हुआ है कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। लेकिन इनके दोस्त से बात करते हैं कि उन्होंने क्या इस पर सारी कार्रवाई की, अदारों ने इनको क्या कोई ऐसा कोई होता है, कोई हौसला, कोई हिम्मत दी हो या उनको कोई कहा हो कि जी अनकरीब कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी। ये सारी बातें हम उनके दोस्त से, शबीर के दोस्त से बात करते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। अच्छा मुनीर भाई, मुझे बताएं कि आप क्या लगते हैं शबीर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर मेरा ब्रदर इन लॉ है और जो है ना मैं इस फैमिली से 2009 से अटैच हूँ। और 2009 से ही मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी, पहले तो मैं सिर्फ शबीर के लिए कर रहा था, लेकिन 2014 में मेरे साथ ऐसी पाकिस्तान से बहुत सारी फैमिलीज़ अटैच हुई जिनके कैदी वहाँ पे मौजूद थे, और हम सब ने मिल के ये कोशिश करना शुरू की थी कि जितने पाकिस्तानी वहाँ पे कैद हैं उन सबको जो है ना वो वापस लाया जाए। इस सिलसिले में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखते थे पाकिस्तान के बहुत सारे अहम इदारों को, जिसमें PM, CM। आप मुझे बताएं कि पेशरफ्त क्या हुई, क्या उनकी तरफ से आपको कोई हौसला, कुछ तसल्ली दी गई? फ़िल वक्त हमें सिर्फ जो है ना वो हवाई हौसला दिया जाता है। जब वजारत ख़ारजा के पास जाते हैं वो तो हौसला भी नहीं देते, वो हमें ये कहते हैं कि जी हमने अपना काम कर लिया है, आप वजारत दाखिला से रब्ता करें। काम जब पूछते हैं क्या किया, जी हमने ट्रीटी साइन कर दिया है। ट्रीटी साइन हम 2009 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 2014 में जब हमारे साथ फैमिलीज़ अटैच हुई, हम 450 बंदे की तरफ से एप्लीकेशन लिखते थे। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे, 10-12 इदारे जो थे उन सबको। उसके बाद हमें ये जो है ना उन एप्लीकेशंस का, उन ईमेल्स का, या हम सिटीज़न पोर्टल पे करते थे, तो उनमें ये फ़ायदा हुआ था कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो एक्शन लिया था जब साकिब निसार साहब थे, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकायत चीन के हवाले से मिल रही हैं, वजारत दाखिला कहाँ है, मुझे बताया जाए कितने अरसे में कैदी वापस आएंगे। इसमें मार्च 2018 में कैबिनेट में बिल पास हुआ, नवंबर 2018 में पाकिस्तान और चाइना का ट्रीटी साइन हुआ, अक्टूबर 2020 में ये नाफिजुल अमल भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमें वजारत दाखिला ख़ारजा ये कहती है कि जी हमने अपना काम कर लिया है। अच्छा, आपकी बात हुई थी शबीर से कभी? शबीर से ये लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई है। अच्छा, वो क्या कहता है कि किस जुर्म में उसको जेल में डाला गया है और कितनी सज़ा, अगर जो भी जुर्म उस पर लगा हुआ है? वो अपने बारे में ना तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकता है, और ना ही कोई ऐसी बात जो वहाँ से रिलेटेड हो, चाइना की जेल से रिलेटेड हो, या कैदियों से रिलेटेड हो, या उनसे किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता। इवन अपने हालात के बारे में हमें नहीं बता सकता कि वो किस हालात में है, वहाँ पे क्या कर रहा है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो उसकी क्या वजह, क्यों नहीं बता सकता? ऑब्ज़र्व किया जाता है उन्हें,
उनको वो जो वहाँ की जो इंतज़ामिया जेल की जेल अहकाम जो हैं वो वहाँ पे उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर वो जब भी कॉल करते हैं उन्हें वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा उनकी मूवमेंट तो नहीं है जो अब हमारे जो है ना हमें अगेंस्ट हो। वो उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए वो ना तो अपने बारे में कुछ बता सकता है, ना ही वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो आपको लगता है कि शबीर वापस आएगा? इंशाल्लाह ताला अगर वो ऐसी बात हमारे साथ शेयर करे ना, मैं आपको एक जो बताता चाहूँ कि अगर वो हमारे साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो उसे वहाँ पे सज़ा मिलेगी उसकी। अच्छा। उन्हें ये पता चल जाए कि ये यार ये काम कर रहा है तो उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं, क्योंकि वो सारा कुछ यहाँ से मैंने कई मेल्स भेजी, वो अपनी फैमिलीज़ की जो है ना वो तस्वीरें मांगता था, तो वो मैंने बहुत सारी मेल्स भेजी हैं उसे, लेकिन वो उसे उस तक नहीं पहुँचती। अगर हम बाई डाक भिजवाते हैं तब भी उस तक नहीं पहुंचती। उन्हें वो फ़िल्टर करते हैं, वो जो जो उसके उन्हें लगे कि यार ये चीज़ नहीं है, वो भी लिखी हुई वो उस तक पहुंच जाएगी। अदरवाइज़ बाकी किसी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई तस्वीर या कोई चीज़, कोई पैसे या कोई यहाँ से कोई किसी भी किस्म की हम कोई चीज़ भेजते हैं वो उसे नहीं मिलेगी। अच्छा मुनीर भाई, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी इंतज़ामिया के लोग, कोई ऐसे अदारों के लोग भी ये वीडियो देखें, तो क्या पैगाम देंगे उन्हें? पैगाम बस इतना ही है कि जैसे ये फैमिली है, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में हैं। ये बड़ा कहा जाता है ना, और हम खुद भी कहते हैं कि चाइना पाक दोस्ती ज़िंदाबाद। तो अगर ये चाइना पाक दोस्ती ज़िंदाबाद है तो हमारे जो पाकिस्तानी जो बिला वजह जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं आगे बढ़कर कदम बढ़ाते और उनको वापस लाने की कोशिश की जाती? मैं खुद हैरान हूँ कि हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है और समुंदर की गहराइयों से जो है वो गहरी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो कैदी हैं, बेशतर कैदी ये बात करते हैं कि हमारी सज़ाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। अपनी फैमिली से या इनका बेटा भी जब शबीर फ़ोन करता है वो हमें ये बताता है कि मेरी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है लेकिन मुझे छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। जब वो हम कहते हैं कि यार अपनी जेल वालों से पूछो। तो कितने साल हो गए उसने जेल में? उससे 17वां साल शुरू है। यानी कि ये तो उम्र कैद से भी ज़्यादा है। उम्र कैद से भी ज़्यादा है। अगर उम्र कैद भी देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से 10 साल या जो है ना 12 साल के करीब बनती है, जिसमें 12 घंटे को पर डे जो है ना वो फ़ी डे देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये 17वां साल उसे शुरू है। और आप यकीन करें वो लास्ट जब हमारी बात हुई थी तो वो हमें बता रहा था कि हमारे पास कॉन्सुलेट जो है एम्बेसडर है वो भी 2 साल से नहीं आया। जो पाकिस्तानी एम्बेसी चाइना में है उनसे भी किसी ने रब्ता नहीं किया अभी? वो हम उन्हें करते हैं रब्ता। मैंने जब उसने हमें मुझे ये बताया तो मैंने एम्बेसी कॉल किया। मैंने कहा जी आप लोग जो है ना वो कैदियों के हालात के बारे में जानने के लिए आप जाते नहीं हैं, जेल में विज़िट नहीं कर रहे, कैदी शिकायत कर रहे हैं। मुझे आगे से कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो हर हफ्ते रिपोर्ट आती है कि जी ठीक है हम हर हफ्ते जाते हैं, लेकिन उसके फिर कैदी क्यों ये बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि कैदी क्यों ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। नहीं जी वो झूठ बोलते होंगे। यार इतनी बुरी कंडीशन में वो वहाँ पे बैठे हैं कि जिनके पास ना तो अपना है कोई, ना ही वो किसी को कुछ बता सकते हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सारी कहानी सुनी और इन बूढ़े माँ बाप की भी आप बीती आपने सुनी कि ये किस तरह अजियत में मुब्तला हैं। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता कि उनके बेटे या उनका कोई अपना प्यारा परदेश में जाए और फिर उसके बाद इस तरह वो नाजायज़ किस्म की जेल उसे भेज दिया जाए और उसके बाद ना हमारी हुकूमत अपने पाकिस्तानियों का पीछा करे ना हमारे अदारे। हम ख़बरों में तो बड़ा कुछ ऐसा देखते हैं कि जी हमारी वजारत ख़ारजा ने ये कर दिया, हमारी वजारत दाखिला ने ये कर दिया। 17 साल से शबीर और शबीर जैसे ना जाने कितने नौजवान हमारे पाकिस्तानी ऐसी जेलों में सड़ रहे हैं और बहुत सारे हो सकता है कि वहाँ पर अपनी सज़ा काटते काटते मौत की वादी में भी चले गए हों। उनके प्यारों का क्या हाल है, ये आपके सामने तस्वीर है कि आज ये बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की शक्ल को तरस रहे हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हमें मरने से पहले हमारा बेटा सामने आ जाए। मेरी कोशिश है, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि शबीर वापस ज़रूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे अदारे, हमारी हुकूमत इस पर नोटिस ले और जो हमारे पाकिस्तानी इस तरह परदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए कोई बेहतर लायामल अख्तियार किया जा सके ताकि वो प्यारे अपने प्यारों के पास आ जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।